Hi, good evening, everyone. Yes, we'll start with Modulus 4. Today's session is more about solving questions. Let us start the problem solving. Go ahead, give it a try. It's a question from CAT, past CAT question. Take 2 minutes and solve. Yes, good evening. There are hardly 10-12 questions remaining in Modulus. Then we are done with the topic. Which one of the following is true about roots of the equation? There is one root that lies between -1 and 0. The other lies between 0 and 2. There is one root that lies between -2 and 0. The other one lies between 0 and 1. There is exactly one root that lies between -2 and 1. There are two roots that lie between -3 and 3. You need to find out the location of roots. देखो, I'll show you a few observations here in this particular case. Give me a second. The digital pen is not responding. Now observe this part. When there is one root between -1 and 0 and the other is between 0 and 2. So they are both between -3 and 3. If there is one root between -2 and 0, the other is between 0 and 1. So they are both between 3 and 3. तो अगर A और B सही है तो D भी सही होगा. So think how to approach this problem. You have seen a lot of methods of solving modulus. You have seen graph methods, you have seen equation method. यहाँ पे graph method नहीं काम आएगा. Comment answers. Give me a second. The PowerPoint is stuck.
Give me a second, guys. Yes, we are back online. So I was telling you about if option A and B are correct, then D will also be correct. How to solve this question? These are the most common questions in modulus in CAT since last 3 years. They involve a quadratic or some kind of function. Here, this is the only place with modulus. So I have to assume two cases. One, if x is more than equal to 2. When x is more than equal to 2, the value inside is positive. So it becomes x square minus x minus 2 plus 2 is equal to 0. X square minus x plus 4 is equal to 0. Now if you check delta, what is delta? Delta is b square minus 4ac. Here, what is b square? 1 minus 4ac. You see, delta is equal to minus 15. This is imaginary roots. So x cannot be more than 2. If x is more than 2, solution is not possible. Roots are imaginary. If x is less than 2, now the value inside is negative. अगर आप यहाँ पे 2 रखो, 1 रखो, 0.5 रखो तो ये negative है. When the value inside is negative, हम बाहर में एक minus लगाते हैं. That is the property of modulus. So this turns into x square plus x minus 2 plus 2 is equal to 0. X square plus x is equal to, ध्यान से देखना, x into x plus 1 is equal to 0. तो आपका एक रूट आ गया x is equal to 0, यहाँ पे देखो, और दूसरा आ गया x is equal to -1. बस एक चीज है, you must confirm, is this following this pattern? Is x equal to 0 less than 2? Yes. Is x minus 1 less than 2? Yes. There are two roots. So the roots are 0 and 1. So are they between 0 and 1? No. Are they between -2 and 0? Yes. But it says one root lies. Here they are both between that range. This is gone. There is one root between -2 and 1. See, they are both between -2 and 1. So the only option correct possible is D, Delhi. Between -3 and 3, there are two roots. I will not believe it's a CAT question taken from CAT. Recent years. So if you ask me how much time should it take in the exam, hardly 2.5 minutes. You have to simply check two cases. One,
x is more than 2. Second, x is less than 2. Confirmation on the solution. देखो समझा क्या आपको? Any doubts in this? Let me know. Clear है ये? Comment if this is clear. Sure. Now again, this is again a question from CAT. You see, I told you modulus आएगा तो either function के साथ या फिर quartic के साथ. Take 2 minutes. Give it a try. Give it a try. देखो, here the question says दोनों फंक्शन का एडिशन विथ अ मॉड्यूलस should be equal to addition of 2 modulus individual functions each. आप अगर चाहो तो you can approach this through options. You can try and solve this question, but first you need to understand options में क्या फर्क है. This option says 2.5 to 3.5. This option says x must be less than 2.5. This option says x must be more than 3.5. ये भी वही कह रहा है, लेकिन इसमें 2.5 को इक्वल नहीं कर सकते. देयर इज नो इक्वल साइन. x कैनॉट बी 2.5. लेकिन यहां देखो, x कैन बी मोर देन इक्वल टू 3.5 और इट कैन बी बिटवीन 2.5 एंड 3.5 इंक्लूडिंग बोथ. तो देखो, सबसे आसान वैल्यू होती है 0 +1 -1 पुट करना. सो ये ऑप्शन कह रहा है 2.5 से नीचे जाओ, ये ऑप्शन कह रहा है 2.5 से नीचे जाओ. तो दोनों से नीचे x इज इक्वल टू 0 आता है. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 0 नहीं आता. बी एंड सी हैज 0 इन इट. 0 रख के देखो. इफ आई पुट 0 तो ये हो जाएगा -5. इफ आई पुट 0 तो ये हो जाएगा 7. तो ये कैलकुलेशन क्या है? मॉड्यूलस fx प्लस gx. ये fx है और ये gx है, विच इज इक्वल टू 2. क्या ये बराबर है इक्वल टू f का मॉड्यूलस प्लस g का मॉड्यूलस? ये कितना है? ये 12 है. इज 2 इक्वल टू 12? इट इज नॉट. हमने केवल 0 पुट किया और हमें पता पड़ गया
that this option and this option are not possible as solution or as ranges. अब ए और सी दोनों, ए और डी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, केवल क्या फर्क है, इसमें बाउंड्री की वैल्यू दी हुई है 2.5 इज इक्वल टू एक्स, 3.5 इज इक्वल टू एक्स, इसमें इक्वल नहीं हो सकता। क्या करना है आपको, कोई भी एक नंबर बाउंड्री से पुट कर दो। मैंने x को पुट कर दिया 2.5, इसमें पुट किया 2.5, तो ये हो गया 0, और j में पुट कर दिया 2.5, तो अब देखो यहां पे 2.5 रखना है। 2.5 इंटू -2 5, 7 - 5 2, तो 0 + 2 मॉड्यूलस, क्या ये बराबर है 0 + 2 मॉड्यूलस के? ये fx प्लस gx है, ये fx मॉड प्लस ये gx मॉड है। आप देखो आर दे इक्वल? यस। क्या पुट किया आपने? 2.5, दैट इज योर आंसर, दैट्स योर आंसर। You want to approach it by solving equations, we can do that. We can also try through graphs. ग्राफ थोड़ा लेंदी होगा, but we can do that as well. ट्राई कर सकते हैं उससे भी। देखो मैं एक बार ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको। What exactly fx plus gx is? आप इसको और इसको जब ऐड करोगे, when you add fx and gx, तो आप देखो ये वाला -2x और ये वाला +2x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 7 - 5, ये आपका इक्वल टू 2 है फॉर श्योर। fx plus gx इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ऑलवेज। अब राइट साइड में क्या है हमारे पास? 2x - 5 का मॉड और 7 - 2x का मॉड। अब हमें ये प्लॉट करने आता है। हाउ डू वी प्लॉट दिस? ये 0 कब होगा? 2.5 पे। ये 0 कब होगा? 3.5 पे। 2.5 इसमें और इसमें दोनों में रिप्लेस कर दो, दोनों में रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू आ गई 2। 3.5 दोनों में रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू आ गई 2। और ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइंस, ऐसा। तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं ना कि ये जो राइट साइड का ग्राफ है, विच इज fx मॉड प्लस gx मॉड, आपसे यही पूछ रहे हैं ये इक्वल टू 2 कब होगा? तो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक ये इक्वल टू 2 फिक्स्ड है। ये x की वैल्यू है, ये फिक्स्ड है, इसके बीच में ये x की वैल्यू है नीचे, उसके बीच में ग्राफ इज फिक्स्ड 2। तो राइट साइड इज ग्राफ बेस्ड अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन से किया हमने। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इक्वेशंस इफ यू वांट। मॉड्यूलस लोगों ने हाई बना रखी है क्योंकि लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, अदरवाइज इट इज फेयरली डूएबल। Confirmation on this? Is this clear to everyone?
मूविंग ऑन, ये लो, ये एक बार ट्राई करो. Let S be set of all points xy in xy plane such that this condition and this condition are true. Then the area in the square units of the region represented by S equals. बेसिकली एरिया फाइंड करने का क्वेश्चन है, तो दो दो कंडीशंस हैं. गिव इट अ ट्राई. What is the meaning of this representation? इसका मीनिंग क्या है? What does this mean? ये हमने लास्ट शीट में बनाया, लास्ट लेक्चर में हमने बनाया है. x mod plus y mod is less than equal to 2 का मतलब है ऐसा 2 यूनिट्स ऐसे कट करना पड़ेगा आपको. दिस विल बी अ स्क्वायर. लेस देन मीन्स अंदर की तरफ का एरिया. दिस इज 0.2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, -2 एंड -2. ये आपका ग्राफ है x mod प्लस y mod लेस देन इक्वल टू 2 का. अंदर की तरफ वी नीड टू काउंट द एरिया. अब इसका क्या मीनिंग है? x mod इज मोर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग है x इज मोर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 1. यहां पे x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे एक लाइन होगी ऐसा. आपको इससे राइट साइड पे एरिया गिनना है. x इज इक्वल टू -1 पे एक लाइन होगी, अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और आपको इसके लेफ्ट में एरिया गिनना है. तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपको, ये ट्राइंगल, ये बोथ साइड बनेगा. आपको इसका एरिया गिनना. दिस इज द क्वेश्चन. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. अब देखो क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट्स. आपको केवल ये लेंथ निकालनी है. तो मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं. मतलब कि ये पॉइंट है आपका 1,1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, और ये पॉइंट है आपका x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1. तो इसका लेंथ कितना हो गया? y का वैल्यू 1 to -1, इसका लेंथ 2 हो गया. तो ये ट्राइंगल का बेस हो गया 2 और ये ट्राइंगल का हाइट हो गया 1. 1/2 इंटू 2 इंटू 1. तो इसका एरिया हुआ 1 यूनिट. ये राइट साइड का एरिया हुआ 1 यूनिट. तो लेफ्ट साइड का भी एरिया कितना होगा? 1 यूनिट. सो टोटल एरिया वुड बी 2 स्क्वायर यूनिट्स. तो अब केवल 2 टाइप करके इंटर दबा देना है कैट में. इसको टीटा क्वेश्चन बोलते हैं. टाइप इन द आंसर.
कंफर्म करो ये क्लिक हुआ क्या? द फाइनल आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स. Moving on. Network is fine. At my network is fine. मैं बीच में बोले ना to give you guys time to solve and write. The network is fine बेटा. There is no data loss at my end. Data loss कोई भी नहीं है. Network is perfect. अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं? How many number of solutions are there? Solutions means आपको वो वैल्यू चाहिए x के जिसमें LHS is equal to RHS हो जाए. So go on, give it a try. Try करके देखो. How many solutions are there for x? अब इस तरह के क्वेश्चन में ना डोंट इवन थिंक अबाउट ग्राफ. क्यों? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x मॉड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्यूबिक बन जाएगा विथ अ मॉड. इतना भारी आता ही नहीं अपने को. अपने को स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ आते हैं या क्वाड्रेटिक के ऊपर मॉड लगा दो तो कैसे पलट जाता है हमको वो आता है. ये क्यूबिक विथ अ मॉड हमें नहीं आता. डोंट इवन थिंक अबाउट अप्रोचिंग दिस थ्रू ग्राफ्स. आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं. सॉल्यूशंस मींस x के वो वैल्यूज which make LHS is equal to RHS.
देखो, कभी भी आपको हर जगह पे अगर आपको ऐसा दिखे दैट वेरिएबल x हर जगह कॉमन है, x इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आप अगर 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो 0 इंटू एनीथिंग, राइट साइड में 0 पुट कर दोगे, इट इज ट्रू। x इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। अब देखो, इफ आई इमेजिन x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा विदाउट एनी चेंज। अब मेरी बात को अच्छे समझना, क्योंकि आई नो x इज पॉजिटिव, आई कैन कैंसल। हम कभी भी वेरिएबल कैंसिल नहीं करते हैं विदाउट नोइंग द साइन और द वैल्यू। यहां पर मुझे पता है पॉजिटिव है, आई कैन कैंसिल। तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। आप जब इसके रूट्स निकालोगे, व्हेन यू ट्राई एंड सॉल्व दिस, मैं कहता हूं आपके लिए, द एडिशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5/6 and multiplication of roots is equal to 1/6. So clearly through practice you can see 1/3 plus 1/2 are the roots. क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं? यस। तो यहां पर दो सॉल्यूशंस आए। वो दो सॉल्यूशंस क्या है? 1/2 एंड 1/3। यहां पर एक सॉल्यूशन आया व्हेन x इज 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? x इज नेगेटिव। कभी भी अगर x नेगेटिव रहता है तो मॉड्यूलस के बाहर हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन। I can cancel x. माइनस 6x² माइनस 1 इज इक्वल टू 5x। इसको मैं इधर भेज देता हूं, 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपके रूट्स क्या हो जाएंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू -5/6, a इंटू बी इज इक्वल टू 1/6। अब की बार आपके रूट है -1/3 इंटू -1/2, -1/3 प्लस -1/2। क्या ये दोनों नेगेटिव है? यस। सो देर आर टू मोर सॉल्यूशंस। आपने हर पॉसिबिलिटी देख ली। x को 0 मान लिया, वन सॉल्यूशन। पॉजिटिव मान लिया, दो सॉल्यूशन। नेगेटिव मान लिया, दो सॉल्यूशन। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? 5। आपको 5 सबमिट कर देना है, 5 टाइप करना है ऑप्शन वहां पे ब्लैंक स्पेस में, और उसे सबमिट कर देना है। क्लियर है? कंफर्मेशन ऑन दिस? गुड गुड। ट्राई दिस। क्या लैंग्वेज है? द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ
modulus x and x plus 2. Try. क्योंकि मॉड्यूलस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वी माइट ट्राई इट थ्रू, वी कुड ट्राई इट थ्रू ग्राफ, बट रूट निकालने पड़ेंगे, हमें रूट की वैल्यू चाहिए ताकि हम उनको मल्टीप्लाई कर पाए, सो दैट वी कुड मल्टीप्लाई रूट पॉइंट्स। तो बेटर है प्रॉपर सॉल्व करो। अब ये जो अंदर इक्वेशन बनी हुई है, हाउ डू आई फर्स्ट फाइंड आउट ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं। दिस लुक्स लाइक x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में -6 है तो मेरे को एक हिंट लग गया, इट कैन बी आइदर 2 इंटू -3 और -2 इंटू 3, एक हिंट लग गया, और इट कैन बी -1 इंटू 6। तो बीच में अगर ये होता तो बीच में 5 आता, 5 नहीं है 1 है, मतलब इनमें से एक वैल्यू है, और बीच में माइनस है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मॉड्यूलस तब तक आप ओपन नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव कब होगा? ये रूट है इसका 3, इसका रूट है -2, प्लस माइनस प्लस, याद करो ये सब आपने वेवी कर्व मेथड में किया है। तो जो अंदर की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, व्हेन x इज मोर देन 3 इक्वल टू 3, लेस देन -2 इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2 और x मोर देन इक्वल टू 3, जो अंदर की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है, वी ओपन विदाउट एनी चेंजेस, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, ये इधर आ जाएगा -8। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, आई कैन फैक्टराइज दिस एज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या रूट्स है मेरे पास? मेरे पास रूट है x इज इक्वल टू 4, क्या ये 3 से बड़ा है? यस। दूसरा है x इज इक्वल टू -2, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू -2 है? यस। तो हमारे पास कितने रूट आ गए? 2 रूट आ गए हमारे पास, वी हैव 2 रूट्स। ये कब था? जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव होने के लिए हमें ये रेंज लेनी पड़ेगी, दिस इज द रेंज, ये रेंज है। देखो ये साइन किसका है? ये इस पूरे क्वाड्रेटिक का साइन है, वेवी कर्व मेथड।
तो कैट वाले यही करते, दो दो कॉन्सेप्ट कंबाइन करते हैं एंड वी पैनिक। अब अंदर माइनस साइन आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +-2। तो अब देखो इस रेंज में +2 तो आता है लेकिन -2 नहीं आता। इस रेंज के अंदर में केवल एक ही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2। तो यही क्वेश्चन है, हर एक वैल्यू जो पॉसिबल है उसका प्रोडक्ट बताओ। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 4 इंटू -2 इंटू 2 which is -16. That is the product of all values. मूविंग ऑन, इससे आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स इन एनी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन? पहले आपको ये पता करना है कि जो अंदर की वैल्यू वो नेगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है, उसके बेसिस पे मॉडुलस ओपन होगा, बिना उसके मॉड ओपन नहीं हो सकता। फिर आपको वो पॉइंट निकालने हैं। हाँ, अब ना ग्राफ से अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करता हूं। यू कैन ट्राई इट थ्रू ग्राफ, बट आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर -x-6, ये जो ग्राफ है इसके रूट आएंगे 3n-2। ये ऐसा ग्राफ आएगा आपका, ये 3 एंड ये -2। ये मैंने आपको अर्लियर थ्योरी में सिखाया है, व्हेन वी पुट अ मॉड्यूलस ऑन अ इंटायर क्वाड्रेटिक, तो जो नीचे का हिस्सा है ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। दिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इनके बीच में यहां पर कहीं वाई एक्सिस होगा हमारा। नाउ हाउ डू वी प्लॉट द ग्राफ फॉर x+2? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इसका पीक कहां पर होगा, 6 पर होगा। इसमें x को 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा यहां पे, और y को 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो ऐसा आपका ग्राफ आएगा। आप ऐसा देख सकते, यू कैन ऑब्जर्व कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन हैपनिंग। एक पॉइंट यहां पर है, x इज इक्वल टू -2 क्लियरली दिख रहा है, दूसरा पॉइंट यहां पर है और तीसरा यहां पर है। तो 3 रूट आएंगे तो क्लियर है, उनको फाइंड करना पड़ेगा बेटा। पहले आपको ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इक्वेशन टू फाइंड दैट पॉइंट। इसीलिए मैंने कहा इवन आफ्टर नोइंग द ग्राफ अप्रोच, आपको इक्वेशन तो सॉल्व करना ही है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x का वैल्यू आपको लगना ही लगना है, देयर इज नो वे अराउंड दिस।
मूविंग ऑन, चलो ट्राई दिस। ये आप ऐसा इनइक्वालिटी पहले बना चुके हो जब मैं आपको ग्राफ सिखा रहा था कि जब केवल x पे मॉड होता है y पे नहीं होता, इस तरह के आपने कुछ इक्वेशंस ड्रॉ किए हैं पहले भी। यू हैव द एक्सपीरियंस, गिव इट अ ट्राई, टेक 2 मिनट्स। पहले ग्राफ बनेगा फिर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, उसके थ्रू यू विल फाइंड द एरिया। What is the area for these inequalities? तो इफ यू नोटिस ये दोनों सिंपल इनइक्वालिटीज हैं, दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड। इफ दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, क्यों ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा? ये आपसे कह रहा है y इज मोर देन 0। आपको x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन देखना है, x एक्सिस के ऊपर y इज मोर देन 0। दूसरा आपसे कह रहा है y इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, मैंने इमेजिन कर लिया दिस इज y इज इक्वल टू 1, तो मुझे इसके नीचे का एरिया देखना है। तो y इज इक्वल टू 1 से नीचे और y इज इक्वल टू 0 से ऊपर। तो बस इसी रेक्टेंगुलर स्पेस में मुझे इसको ड्रॉ करना है, मुझे उसके बाहर नहीं जाना है। सो हाउ डू वी ड्रॉ दिस? देखो एक बार आप देखो, मैंने कह दिया मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू y ले लो आप, बाद में लेस देन वेस देन देखेंगे, इक्वल टू y ले लो। अगर x को 0 करते हैं तो y -1 हो जाता है, नेगेटिव तो जाना ही नहीं है हमें। तो यहां से आपका जो ग्राफ होगा, ये यहां से आपका ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। हमने डिस्कस किया ना मॉड्यूलस x का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप का होता है, वी शेप का। आपने बेसिकली क्या किया यहां पे, क्योंकि आपने मॉड्यूलस x में से 1 माइनस कर दिया, तो ये जो v है ये ओरिजिन की जगह पे नीचे चला गया। हमें नीचे का पोर्शन नहीं काउंट करना है,
अब इसका क्या मतलब है लेस देन का? ये जो लेस देन का सिंबल है इसका मीनिंग क्या है, देखो आप समझो। मैं केवल इतना चेक करता हूं क्या ओरिजिन मेरे रेंज में है। यहां पर अगर 0 0 अगर देखा जाए, 0 0 अगर इसमें पुट कर दें, 0 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो -1 0 से कम, मतलब मुझे ओरिजिन काउंट करना है। ओरिजिन काउंट करना मतलब ये जो एरिया अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया निकालने मुझे बोला गया है, ये एरिया। तो अब ये एरिया कैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रपेजियम। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में क्या होता है, व्हाट डज द ट्रपेजियम, व्हाट शेप वी कॉल ट्रपेजियम? ये वाली लाइन ब्लू वाली और ये पैरेलल है। तो ट्रपेजियम का एरिया इज इक्वल टू 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो 1 है, डिस्टेंस तो हमारा 1 है। मुझे केवल पैरेलल लाइन की लेंथ निकालनी है। तो ये क्या करना है मुझे यहाँ पे, व्हाट डू आई नीड टू से? हमने y को इसमें 1 रख दिया, हमने y को इसमें 1 रख दिया। x माइनस x मॉड -1 इज इक्वल टू 1, x मॉड इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और -2, x की वैल्यू आ गई 2 और -2। तो पैरेलल लाइन की लेंथ कितनी हो गई, 4 यूनिट, -2 से +2। ये क्या है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, x मॉड -1 इज इक्वल टू 0, x मॉड इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया +1 और ये हो गया -1। तो ये लाइन की लेंथ कितनी हो गई, 2। तो आपका एरिया हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 1। तो आपका टोटल एरिया हो गया 3 यूनिट्स। नाउ आई कैन अश्योर यू, क्योंकि मैं बड़े आराम से ड्रॉ कर रहा हूं, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, राइट लेफ्ट लेंथ, आपसे और फास्ट बनेगा ये, यू कैन सॉल्व दिस मच फास्टर। क्लियर है ये, कंफर्मेशन ऑन दिस? गुड, चलो अगेन ये लुकिंग एट अ कैट क्वेश्चन। कैट का सवाल आप देख रहे हो। हाउ मेनी पेयर्स कैन, how many ways can a pair of integers x and a be chosen such that, क्या बोला है, इंटीजर्स, x and a are integers।
इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये समझो x अलग मॉड्यूलस है, अलग इंटीजर है, a अलग मॉड्यूलस है, अलग इंटीजर है। तो 3-4 केसेस बना बना के आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। डू यू गाइज रिमेंबर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाया था हमने? ये वाला 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऐसा थोड़ा यहां दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो यहां पे, थिंक ओवर दिस। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके 3-4 केसेस चेक करते हैं। पहला, व्हाट इफ दिस इज इक्वल टू 0? अगर यही 0 है अब इसमें अगेन 2-3 पॉसिबिलिटीज है, x पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैंने एज्यूम कर दिया x इज मोर देन इक्वल टू 0। इफ दैट इज द केस तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो देखो, आर दे मोर देन इक्वल टू? यस। तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिल गए? ए की एक वैल्यू के लिए x की 2, तो 2 पेयर्स मिल गए आपको इंटीजर्स के, x एंड a के। सेकंड, a को मैंने 2 लिया, मैंने मान लिया x इज लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा संभल के, लेस देन में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लेते, लेस देन में लेस देन 0 ले लिया मैंने, ऐसा। हम जब लेस देन 0 लेंगे यहां पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। थोड़ा ये ध्यान देना, आप लर्न दिस पार्ट। आपको बिलो 0 लेना था x को, तो ये आप कंसिडर नहीं करोगे। देयर इज ओनली वन पेयर। व्हाट इज दैट पेयर? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। अब थर्ड केस में अगर a जो है वो 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है अगर a, मतलब यहां पर कोई ना कोई नंबर बनेगा, एक इंटीजर बचेगा। इंटीजर कुड बी 1 2 3 4। आप इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेंशन है एक्स माइनस 1 स्क्वायर का या एक्स प्लस 1 स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में आता है, बीच में एक में माइनस 2x आता है और एक में प्लस 2x आता है। तो यहां पे अगर a इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन इसको 1 बनना है, ध्यान से देखो, इसको 1 बनना है, दैट मीन्स a मस्ट बी आइदर 3 और a मस्ट बी 1। a को 3 पुट करो ये 1 बन जाएगा, a को 1 पुट करो ये 1 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला केस लिया मैंने, इसके अंडर में भी सब केस x इज मोर देन इक्वल टू 0,
तो ये इक्वेशन बन के आ गई। तो यहां पर पेयर कितने हैं? a इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। तो देयर आर टू पेयर्स। अब आप समझो क्यों कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कैट। जिन्होंने शॉर्टकट्स ही सीखे हैं वो जल्दबाजी में सॉल्व कर रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व फास्ट। इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इलैबोरेट क्वेश्चन। अब यहां पे कितने सॉल्यूशन है? a इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1। देयर आर टू पेयर्स। तो पेयर कितने हो गए? 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। देयर आर 7 पेयर्स। टेक योर टाइम, आराम से देखो। प्रोबेबली somebody who is solving modulus for the first time इतना नहीं सोच पाते हैं। यू कैन स्किप द पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम है दो दो वेरिएबल्स के ऊपर में मॉड है। मूविंग ऑन। टाइम चाहिए टू कॉपी दिस कमेंट। डन कमेंट। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं जिन्होंने शॉर्टकट वॉर्टकट सीखे ना मॉड्यूलस के कि ये चेक कर लो ये हो जाएगा, ये ना बनेगा बेटा आपसे। कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं आपसे। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। दो अलग अलग वेरिएबल्स पे मॉड है। Try this. Take a few minutes time, try this.
what is the area in square units enclosed by this, the x-axis and the y-axis equal to? तो पहले हमने y-axis ड्रॉ कर दिया, x-axis ड्रॉ कर दिया. जब आप x is equal to 2 कहते हो तो it is basically a vertical line. x is equal to 2 is a vertical line. ये origin है 0 0 और ये लाइन है x is equal to 2. अब ये कैसे प्लॉट करेंगे, ये याद करो आप. इसको शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस से बहुत बढ़िया ढंग से ड्रा कर सकते हैं. अगर ये केवल x का मॉड होता तो ये ओरिजिन पे बनता ऐसा v, ओरिजिन पे v बनता ये. लेकिन आपने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया. 2 माइनस कर दिया मतलब यहां पर v बनेगा आपका ऐसा, यहां पर ऐसा v बनेगा. मैं शेडो से बनाता हूँ, ये शेडो से ऐसा v बनेगा आपका x माइनस 2 मॉड. आपने उसमें क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया. तो अब 4 की हाइट पे v बनेगा बेटा ऐसा, 4 की हाइट पे v बनेगा ऐसा. अब आपको चाहिए एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ एंड एक्स वाई एक्सिस. मतलब ये एरिया चाहिए आपको, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ये रेड लाइन से, ये दिस इज द एरिया यू वांट. अब एक तरीके से अगर आप देखो ये फिर से ट्रपेजियम बन चुका है आपका. इट्स अगेन अ ट्रपेजियम. ये कितनी हाइट है, 4. मुझे ये वाली हाइट निकालनी है. ये वाली हाइट का मतलब क्या है, इस लाइन पे x 0 होता है, आप इसमें x को 0 कर दो तो ये हाइट 6 यूनिट्स की है, ये 6 यूनिट की हाइट है. ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 यूनिट्स की. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रपेजियम, 1/2. एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 6 और ये 4, एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द लेंथ ऑफ द बेस, ये कैंसिल. तो आपका एरिया आ जाएगा 10. दैट इज योर आंसर. कंफर्मेशन ऑन दिस, समझा आपको ये आंसर क्लिक हुआ. गुड. बस एक दो क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं. The given expression will have no solution for how many positive integral values of a. मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं चाहिए. मान लो अगर ये 10 होता और मुझे x की एक आधा वैल्यू मिल जाती, मतलब सॉल्यूशन मिल जाता. मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए a की जिसमें सॉल्यूशन बने ही ना. तो a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. आप a को इमेजिन ना करके y को इमेजिन करो. आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू करो. ये 0 कब होगा, when x is equal to 5. ये 0 कब होगा, when x is equal to -8.
आपका टास्क क्या है, दोनों को चेक करना. पुट -8 इन बोथ. तो पहला वैल्यू 13, दूसरा 0 इज इक्वल टू y. सो 13 की हाइट पे एक पॉइंट होगा. पुट x इज इक्वल टू 5 इन बोथ. ये 0 प्लस 13 इज इक्वल टू y. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और बाद में ऐसा क्रॉसओवर वर्टिकल लाइन ऐसे ऊपर जाएगी. अब आप समझो, अगर a का वैल्यू जो होता 13 होता, देखो ये सारे पॉइंट सॉल्यूशंस होते, -8, -7 एंड सो ऑन. ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू 14 होता तो यहां पर एक 14 का और यहां पर एक 14 का कट आता, दो सॉल्यूशंस. ए का वैल्यू अगर 15 होता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे और यहाँ पे कट आता. तो ए का वैल्यू अगर 13 या उससे ऊपर है सॉल्यूशन मिलता. लेकिन अगर ए का वैल्यू 12 है तो 12 की हाइट तो 13 से कम है, देयर इज नो सॉल्यूशन, ग्राफ कट नहीं करेगा. अगर ए का वैल्यू 11 होता तो ये ग्राफ तो 13 से ऊपर है, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन. तो ए का वैल्यू 12 से लेके 1 तक जाएगा, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव सॉल्यूशन. 12 से लेके 1 तक देर आर 12 सॉल्यूशंस. ए कैन हैव 12 वैल्यूज. 1 से लेके 12 तक ए कैन बी 1, ए कैन बी 2, ए कैन बी 3, ए कैन बी 4. व्हाट डज इट मीन कि कोई सॉल्यूशन नहीं है? दैट मीन्स कोई ग्राफ का इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा उस वैल्यू पे ए की. Confirmation on this? ऐसा क्वेश्चन कैट 2022 में आया है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर एक्स. अभी रिसेंटली कैट में, कैट 2022 में. That is it. We have reached the end of the variety of questions for mods. आप लोग ग्रुप में एक्टिव हो जाओ, ग्रुप में खूब डाउट्स डालो, सॉल्व करो. जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप डाल सकते हो क्वेश्चंस. यू कैन शेयर योर थॉट्स देयर एज वेल. एग्जाम फॉर्म रिलेटेड कोई क्वेरी है, कौन कौन से कॉलेज के फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हो, लेट अस स्टार्ट हैविंग दैट डिस्कशन. मॉक्स के अपने स्कोर शेयर करो मेरे साथ में. मॉक में कोई डाउट आ रहा है, मॉक कैसे अप्रोच करना है, एनालिसिस कैसे करना, लेट अस स्टार्ट हैविंग दो डिस्कशंस. जैसे रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन कि स्नैप के अंडर में कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं. देखो टॉप 2 कॉलेजेस हर कोई जाना चाहता है, बट वैसा स्कोर अपना आ रहा है क्या, आर वी गेटिंग स्कोर्स इन दोज रेंजेस? तो ये डिस्कशन अभी करना जरूरी है. अभी इज नॉट राइट नाउ, अभी एज इन starting today we need to start thinking on these lines. That's it for today. Good night guys. Keep on solving more questions. Good night.